اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے کورونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ تیسری لہر ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور پہلے دو جو یہاں پر لہر آئی تھی اس کا ہم نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کورونا میں جتنا نقصان باقی دنیا کو ہوا ہے، پاکستان میں اس نقصان کا عشر اشیر بھی ہمیں اس سے بھگتنا نہیں پڑا. ہماری معیشت بھی جو ہے وہ مستحکم رہی، اور ہمارا جو جانی نقصان ہے وہ بھی بہت کم رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑی جلدی اقدامات شروع کیے تھے. جب یہ کیس 26 فروری کو پہلا پاکستان میں کیسز جو ہیں کرونا کے رپورٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ہم فیبرری سے بھی پہلے آپ سمجھیے فیبرری کے مہینے میں ہی ہم نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر اقدامات کر دیے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو شرح ہے وہ ہماری بڑی بچت ہوئی، ہمارے ہاں کرونا کیسز کی شرح جو ہے وہ بڑی کم رہی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس لہر کو بھی ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے تو جو پہلے دو جب یہ لہر آئی تھی تو ہم نے جو پالیسی بنائی وہ بڑی کامیاب رہی، اسی کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی قابو پا لیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات جو آج کابینہ کے شروع میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی وہ الیکشنز کی شفافیت کے اوپر ہے. الیکشنز کو پی ٹی آئی کی جو پوری تحریک تھی وہ دو بنیادوں کے اوپر تھی، دو ستون ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ کھڑی ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر اور دوسری شفاف انتخابات کے اوپر. اور شفاف انتخابات کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ بہت کین ایفرٹ رہی ہے کہ ہم ایسے ریفارمز انٹروڈیوس کرا سکیں، ایسی اصلاحات ہم انٹروڈیوس کرا سکیں جس کے ذریعے شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. ای وی ایم مشینز جو الیکٹرک مشینز ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے یہ تلقین کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ ہر ہفتے کابینہ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اور وہ ان میں جو شرائط ہیں وہ ہم کس حد تک لا چکے ہیں، اور جلد از جلد ہمارا جو مینول سسٹم ہے الیکشن کا اس کو ہم کتنی جلدی مشین کے اوپر لا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جماعت یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں. ویسے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک طبقہ ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے بیچارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کوئی بات ماننی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کا جو ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے پتہ ہو کہ اب جو الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں. پھر بڑے پیمانے پر جو مالی نقصان کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، اوورآل تقریباً 85 ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں سے 51 اب جو ہیں وہ منافع میں ہیں. اور جو بڑے اس وقت نقصان ہو رہے ہیں جہاں پہ ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، سوئی سدرن ہے، پشاور الیکٹرسٹی ہے، جینکو 3 ناردرن پاور ہے، اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، اور جلد از جلد فائنانس منسٹری جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس کی جو اتنے بڑے نقصانات ہیں وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں اور اس میں کرائم کیا ہوا ہے، ان اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا گیا ہے. 30 جون 2021 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اگلے مرحلے میں پھر پاکستان پوسٹ، کوئٹہ الیکٹرسٹی کمپنی، حیدرآباد الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی، لاہور اور سکھر الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی جو ہیں ان کا آڈٹ کرایا جائے گا. یہ جو 10 بڑے ادارے ہیں جو سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں ان کا جو آڈٹ ہے، فورینزک آڈٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے. راجہ مظہر حمید صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. کابینہ نے ممنوع اور غیر ممنوع اسلحہ لائسنسوں کی چند درخواستوں پر غور کرتے ہوئے ان کے لائسنسز کے اجرا کی بھی منظوری دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، داخلہ منسٹری ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ کمپریہنسو پالیسی اسلحہ لائسنس کے اوپر جو انہوں نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے. پہلے یہ 2012 کی چل رہی تھی، اب 2020 کی اسلحہ لائسنس کی جو پالیسی ہے وہ اس کو لا رہے ہیں، اور اس کو ہم جو لائسنسز ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کریں گے. کابینہ نے حکومت گلگت بلتستان کی درخواست کے اوپر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی 17 پلاٹونوں کو گلگت بلتستان میں 1 سال کے لیے انٹرنل سیکیورٹی پر معمور کرنے کی منظوری دی ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری ہے یہ.
इसी तरह से जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का नए चेयरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तकरीबन इख्तिताम पे है, और इसी लिए जो इस वक्त जो चंद हफ्ते रह गए हैं उसके लिए नादर मुमताज़ साहब को ये चार्ज दोबारा दिया गया है। 3 माह के लिए उनके पास चार्ज है, लेकिन 3 माह के अंदर अंदर मुस्तकिल चेयरमैन की जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी, और उम्मीद है कि ये 3 माह से कबल जो है वो हो जाएगी। डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब और के सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और डॉक्टर सईदुर रहमान खट्टक के बतौर वाइस चेयरमैन नोटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई है। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त गवर्नर सिंध के, उनको सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के CEO का इजाफी चार्ज दिया गया है। ये भी सिर्फ चंद हफ्तों के लिए दिया गया है, क्योंकि जो नए CEO हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और वो सिर्फ एक रेगुलेटर्स के तौर के ऊपर वो आ जाएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाएगा और वहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी। एक और बहुत अहम मंजूरी जो काबीना ने आज दी है वो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तहत जमा किए जाने वाले वेलफेयर फंड यानी CSR के इस्तेमाल की गाइडलाइंस में तरमीम की मंजूरी दी गई है। ये पेट्रोलियम कंपनी मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं, और उनका जो CSR है वो वहाँ पे प्रॉपरली खर्च नहीं हो पा रहा। ख़ुसूसन सिंध में इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो आ रही हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इसके रूल्स हैं उनमें तरमीम की गई है, और अब जो फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम है उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो CSR कमेटी है डिस्ट्रिक्ट्स में उसका सरबराह मुकर्रर कर सकेगा। इसके साथ साथ सेहत, तालीम, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज के साथ साथ वेलफेयर फंड, ड्रग से मुतल्लिक आगाही, स्पोर्ट्स का फ़रोग़, ख़ुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद, तालीमी सहूलतों की बेहतरी, पीने के पानी, सड़कों की तामीर और मुकामी तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स, ये वो मौज़ूआत हैं जो पहले इस CSR के एम्बिट में शामिल नहीं थे। अब इनको भी उस एम्बिट में शामिल कर दिया गया है ताकि वो मुकामी तौर के ऊपर जो खर्च है वो इफ़ेक्टिव हो सके। इसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं इनमें जो फंडिंग की जो अखराजात हो रहे हैं उनको शफाफ बनाने की ज़रूरत थी, लिहाजा उसको शफाफ बनाने के लिए जो है वो किया गया है। काबीना ने पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गजीनों जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद है उनके लिए स्मार्ट कार्ड की इजरा की मंजूरी दी है। ये जो कार्ड इशू किया जाएगा इसकी मियाद जो है वो 2 साल होगी। इन कार्ड में अफगान महाजरीन की इजाफी मालूमात जिनमें उनका समाजी और मुआशी प्रोफाइल, पाकिस्तान में उनकी नकलो हरकत और फैमिली के गैर रजिस्टर्ड मेंबर जो हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो शामिल होंगी। इससे अफगान जो महाजरीन हमारे यहाँ अब खैर नस्लों से क़याम कर रहे हैं उनको जो ज़िंदगी है उनकी आसान होगी, और एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के तहत अभी उनके जो मसाइल हैं मौजूदा जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक़्तिदार संभाला है उन्होंने बहुत कोशिश की है कि गरीब तरीन लोगों के जो मसाइल हैं उनका इदराक किया जाए, उसको हल किया जाए, और ये जो महाजरीन का मसला है ये भी उसी में शामिल है। इसके साथ साथ काबीना को जो गैस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आगाही दी गई, और काबीना को बताया गया कि इस रवां साल 4.5 लाख नए गैस मीटर्स लगे हैं, और हदफ जो है वो 6 लाख नए मीटर का है। काबीना को बताया गया है कि अगले साल 12 लाख मीटर लगाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। अब तक सिर्फ 27% आबादी जो है पाकिस्तान में वो पाइप्ड गैस से मुतासर से उनको मुयसर है, यानी 27% हमारी आबादी जो है उसको ये जो गैस है वो अवेलेबल है, जिसको हम उर्फ़ आम में सुई गैस कहते हैं कि हमें वो पाइप के ज़रिए वो गैस अवेलेबल है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि 67% लोगों को ये गैस अवेलेबल ही नहीं है। अब एक ऐसी हम इसमें इस्लाहात लाना चाहते हैं जिसके ज़रिए जो अक्सरियती आबादी है मुल्क की उसको गैस की सहूलत जो है वो मुयसर की जा सके, और उसके लिए जो गैस रेट्स के अंदर जो सब्सिडी है उसको देखा जाएगा, असर नो उसका जायज़ा लिया जाएगा, और उसके मुताबिक फिर एक नया निज़ाम जो गैस का है वो वज़ा किया जा रहा है, जिसके तहत जो बाकी आबादी है मुल्क की जिसको अभी गैस की सहूलत मुयसर नहीं है उनको भी हम इस रजीम में ला सके। इसके साथ साथ हमारी जो अदारा-जाती इस्लाहात की कमेटी है उसके जो फैसले हैं उनकी कुछ तौसीक हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये
زور دیا ہے ہماری ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی کے اوپر کہ جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو اے جی پی آر کے اصلاحات ہیں ان کے اوپر خصوصاً آج ڈاکٹر ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ جو آڈٹس تھے یہ 10 سالوں کے پرانے آڈٹس جو ہیں وہ آتے تھے. اب یہ نظام انہوں نے جو نیا نظام وضع کیا ہے اس کے مطابق اے جی پی آر بہت جلدی جو کرنٹ ہو جائے گا، یعنی جو اس کے پاس آڈٹ پیراز آئیں گے وہ بالکل لیٹسٹ آڈٹ پیراز جو ہیں وہ اس کے پاس آ جائیں گے، جس سے کہ ایک جو افیکٹونیس ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کی ہماری ایک سوچ ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ایک مدد ملے گی اور اس کی جو ہے وہ توثیق ہوگی. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی. آٹو ڈسیبل سرنجز کی درآمد اور مقامی طور پر ایسی سرنج کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد پر ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کی منظوری بھی اس میں شامل ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک اندر ہماری جو اپنی مینوفیکچرنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہماری جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ سرنج امپورٹ ہو رہا، سو اس لیے ضروری ہے کہ آٹو ڈسیبل سرنج ہو، تاکہ وہ سرنج ایک دفعہ کے استعمال کے بعد خود بخود بیکار ہو جائے گا، تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہیپاٹائٹس کا اور سارے جو معاملات ہیں دوسرے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی رجیم میں لایا جائے، کسی قانون میں لایا جائے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے متعلق ایک رپورٹ کافی عرصے سے آپ کو معلوم ہے وہ پینڈنگ پڑی تھی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں قانون کی خلاف ورزی میں ملوث تھیں ان کے خلاف جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے وہ کارروائی عمل میں لائے گی، اور جو تمام اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو تمام اویلیبل اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزم ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا. کابینہ کمیٹی میں توانائی کے 4 مارچ 2021، 11 مارچ 2021 اور 15 مارچ 2021 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اون عباس بپی صاحب کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال استعفے کی منظوری دی گئی ہے کیونکہ وہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں، تو فی الحال ہمارا جو قانونی رائے یہی تھی کہ وہ یہ جو بیت المال کے سربراہ وہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کے پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی افادیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب تک موصول ہونے والے فیڈ بیک کے مطابق اس پروگرام سے بے سہارا اور غربت کا شکار افراد کو خاطر خواہ ریلیف میسر آ رہا ہے. معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ نے بتایا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک سے مخیر حضرات کی جانب سے اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے بے حد دلچسپی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کابینہ کو غریب افراد کو احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی کے فراہمی کے پلان سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پلان کے اوپر بھی بڑی کیننس کا اظہار کیا ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ہر مہینے کم از کم ایک بار بلوچستان کا دورہ کریں گے، اور اس سے تاکہ جو وہاں کے مسائل ہیں ان کو وہیں پر حل کرنے کا ایک میکنزم جو ہے وہ ہو سکے. اس سلسلے میں پرائم منسٹر آفس سرکولر پہلے ہی جاری کر چکا ہے، لیکن اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے، اور بلوچستان میں کابینہ کے جو فیڈرل سیکرٹری صاحبان ہیں وہ شیڈول اپنے بنائیں گے اور مہینے میں کم از کم ایک دن جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے کے جائیں گے. یہ آج کے امپورٹنٹ فیصلے تھے. اب میں حماد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے آج کابینہ نے 7.8 ارب روپے کا پیکج، رمضان پیکج منظور کر دیا ہے. یہ 19 آئٹمز پہ مشتمل ہے، اور جو کرنٹ مارکیٹ کی پرائسز چل رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آٹے پہ 30 روپے 50 پیسے کا ڈسکاؤنٹ، شوگر پہ 40 روپے کلو سبسڈی دی جائے گی، گھی پہ 43 روپے کلو، آئل پہ یعنی تیل پہ 20 روپے کے جی، دال چنا پہ 15 روپے کلو، دال مونگ پہ 10 روپے کلو، دال ماش پہ 10 روپے کلو، دال مسور پہ 30 روپے، وائٹ گرام پہ 25 روپے، بیسن پہ 20 روپے کلو، کھجوروں پہ 20 روپے کلو، چاولوں پہ 10 روپے کلو، اور اسی طرح بروکن رائس جو ہوتا ہے اس کے اوپر 12 روپے کلو، اور مختلف سیرپس پہ، دودھ پہ اور
مرچوں پہ بھی یہ سبسڈی دی جائے گی. پہلے جو سبسڈی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی وہ صرف 5 اشیاء پہ تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں یہ 5 سے بڑھ کے 19 اشیاء پہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس کی سیل سالانہ 10 ارب کے قریب تھی. اس سال ہماری سیل جو ختم ہوئے گی وہ تقریباً الحمدللہ 100 ارب کے قریب ہوئے گی. اور یہ سال وہ سال بھی ہوئے گا کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیلیٹی سٹورز بریک ایون کرے گا. اور یہ بڑی دہائیوں کے بعد ایسے ہوئے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ اپنے تمام خرچے بھی پورے کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی منافع بھی جنریٹ کرے. دوسری چیز یہ یوریا کے حوالے سے فی الحال ہم اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ ربی سیزن کے اندر ہمارے کسان بھائیوں نے جو یوریا کی مقدار کنزیوم کی ہے وہ شاید 10 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ جائے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ہم نے اس بلند ترین سطح کے باوجود ہمیں یوریا امپورٹ نہ کرنا پڑا، کیونکہ ہم نے بر وقت پچھلے سال 2 چھوٹے یوریا کے پلانٹ چلا دیے تھے. اسی اچھے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 2 پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو چھوٹے یوریا کے پلانٹ ہیں وہ ابھی سے ہی مارچ سے ہی ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور کابینہ نے ان کی منظوری دے دی ہے. ان پلانٹ چلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل سپلائی بڑھ جاتی ہے، قیمتوں میں بہتری آتی ہے اور آپ کو مہنگا یوریا باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس جو بڑے پیمانے کی صنعت ہے جسے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی موصول ہوا ہے اور وہ بڑا خوشائن ڈیٹا ہے. جنوری کے مہینے میں بڑے پیمانے کی جو صنعت ہے، مینوفیکچرنگ ہے، اس میں 9.1% کی گروتھ ہمیں دیکھنے میں آئی. اور مجموعی طور پہ جولائی سے لے کے جنوری تک کا جو پیریڈ ہے جس میں کووڈ کا بھی لاک ڈاؤن شامل ہے سر، اس میں بھی 7.8% ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. اور لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہماری انڈسٹری ہے وہ تقریباً فل کیپیسٹی کے قریب جاتی جا رہی ہے، جو کہ ایک خوشائن بات ہے. انڈسٹری کے ان اچھے نمبرز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو اکنامک گروتھ کا یعنی کہ معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کے جو ہمارے ارلیئر فورکاسٹس تھے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپ ورڈز ریوائز ہوئیں گے. جو پہلے عالمی اداروں نے بھی جو فورکاسٹ کیے تھے اور جو ہم نے بھی کیے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ انڈسٹری کے اندر ہمیں بہت اچھی اور مسلسل مستقل ایک اچھی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. قیمتوں کے حوالے سے صوبوں کو بھی یہ تجویز دی جائے گی کہ جس طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ بر وقت آٹے کی امپورٹ کرتی ہے، چینی کی امپورٹ کرتی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے بڑے پیکیجز رمضان کے لیے اناؤنس کیے ہیں، تو صوبے بھی رمضان کے اندر سہولت بازاروں کے ذریعے اور رمضان بازاروں کے ذریعے اپنے اپنے علیحدہ بندوبست کریں، جہاں پہ یہ روزمرہ کی کھانے کی آئٹمز جو ہیں ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ دیا جائے. خصوصاً اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ نے بہت دیر کی گندم کی ریلیزز میں، جس سے ہماری جو اوسطاً قیمت ہے وہ اوپر چلی گئی آٹے کی پورے پاکستان میں. آج بھی اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا دیکھیں اور اکتوبر سے یہ مسلسل چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ سندھ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہاں ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ ان کی سندھ حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے انہیں مہنگا آٹا آج بھی مل رہا ہے بنسبت باقی سارے پاکستان کے، خصوصاً پنجاب کے، جنہوں نے بر وقت ریلیزز شروع کی اور وہاں پہ ہمیں آٹے کی بوری کی جو قیمت ہے وہ جلدی نیچے جاتی نظر آئی. معیشت میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رخ میں جا رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ بھی پیچھے کی طرف آیا ہے، 156 روپے تقریباً آج اس کا ٹریڈنگ کا ہمارے پاس جو انڈیکیشن آئی ہے. ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے تقریباً ختم کر دیے تھے. بر وقت ری پیمنٹس ہو رہی ہیں. IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو چکا ہے اور ہمیں باقی بھی تمام جو ایکسپورٹرز کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایک ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. ہمیں نئے ایکسپورٹ کے ایونیوز کھلتے نظر آ رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا بڑے پیمانے کی صنعت کا، تو اس کے اندر بھی ہمیں اب 9% کے قریب گروتھ جنوری میں دیکھنے میں آئی، جو کہ بہت خوش آئند ہے. اس سے روزگار بھی پیدا ہوئے گا، اس سے معیشت کا پہیہ بھی چلے گا اور ملک کی پیداوار بھی بڑھے گی. بہت شکریہ. دو سوال ہیں. ایک تو شبلی صاحب آ جائیں ان کا بھی بتا دیں کہ وہ کب دوبارہ سے ان کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے یا کوئی چینج آ رہا ہے اس میں. دوسرا آپ نے ایک وہ آئٹم ایک بتایا ہے اسلحے کے لائسنس کے حوالے سے، پبلک کو تو بین کیا ہوا ہے مطلب اگر کسی کو ضرورت بھی ہے، اور یہ جو 6 افراد کو آپ نے 10-12 لائسنس اپروو کیے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہے، تو کیا یہ اس میں وجوہات بتائیے، یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے یا مزید ویپنائزڈ ہونا چاہ رہے تھے، کیا بتائیں؟
देखिए, पहली बात तो यह है कि शिबली फराज साहब का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फैसल वाडा साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, ये प्रोसेस में है और जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो हम आज जो है वो उधार के ऊपर काम कर रहे हैं। शिबली फराज साहब वापस आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने असला लाइसेंस का कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसमें 100% जो है एक पॉलिसी जो है होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज यही कहा है। एक पॉलिसी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि वो असला लाइसेंस के हवाले से बनाए और जो जिन लोगों का फिर ये राइट बनता है उन सबको मिलेगा और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी जल्दी उम्मीद है कि इसी चंद हफ्तों में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इसको फाइनलाइज जो है वो कर लेगी। वहाँ कामरान साहब समा से फवाद साहब सऊदी अरब के अजमाया ग्रुप के सरबराह पाकिस्तान में थे और अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि इलेक्ट्रिक पहुंचने कंपनी को फरोख्त करने के हवाले से? दूसरा, क्या वाजबात का मसाइल भी आ रहा है हुकूमत के इलेक्ट्रिक के दरमियान? ये इसका आपको बेहतर जवाब जो है वो पावर डिवीजन के जो काम है वो दे देंगे, क्योंकि हम अगर कोई ऐसी बात करें तो वो उसमें कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सर, पहले तो कैबिनेट के एक अहम डिसीजन से मुताबिक सवाल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस स्कैंडल में मुलविस थी, इस रिपोर्ट में ये किया था कि नाअहल लोगों को अहलियत नहीं थी ऑयल कंपनियों से मुताबिक या ऑयल से मुताबिक उनकी अहलियत नहीं थी, उन लोगों को इदारों में लगाया गया। क्या उनका भी एक हिसाब होगा? और फवाद साहब ये भी बता दें कि पीडीएम में इस्तीफों की बात सुनाई दे रही है, अगर 400 इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या कोई सियासी बहरान पैदा हो जाएगा या आप दिल्ली इंतखाबात करा लेंगे? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो बताया गया है, पाकिस्तान में इस वक्त 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, लेकिन जो 92% ऑयल सप्लाई है वो 8 कंपनियां करती हैं। बाकी जो 58 कंपनीज हैं उनका जो टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 8% है। अब आप अंदाजा लगा लें खुद ही कि अगर 9 कंपनियां जो हैं वो 92% दे रही हैं और बाकी 8% 58 कंपनियां दे रही हैं, तो ये बिजनेस सेंस कैसे बनती है? और ये सारे जो पीछे लाइसेंस दिए गए पिछली हुकूमत के अंदर जो जिस किस्म की पॉलिसीज बनाई गई हैं, अनफॉर्चुनेटली अब कहते तो हैं हम कि आप बार बार यही बात करते हैं, पिछली हुकूमत के ऊपर डालते हैं, लेकिन और क्या किया जाए? जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया पिछले 10 सालों में, और जो इदारा भी आप उठा के देखें तो आपको पता चलता है उसे अंदर से खोखला कर दिया गया। चाहे वो आपका पेट्रोलियम के इदारे हों, चाहे आपके पीआईए हो, चाहे आपका पीटीवी हो, चाहे आपके बाकी इदारे हों, आपको बिल्कुल उसमें नजर आता है। और ये और बड़ी हमने कामयाबियां ली हैं, जिस तरह अभी हमारे साहब ने आपको यूटिलिटी स्टोर्स का बताया। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इदारों को अपने पांव के ऊपर खड़ा करने का, और यही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके साथ भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको निज़ाम को बेहतर कर सकें और कम से कम फ्यूचर के लिए जो हमारे मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। और यकीनी तौर के ऊपर इसमें जब ये तहकीकात की जो रिपोर्ट है अब वो मुतल्लिका एजेंसीज को जाएगी, तो जो जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनमें आएगा। पीडीएफ का फवाद साहब ये बताइएगा कि पीडीएफ का इजलास है, अगर लॉन्ग मार्च का वो फैसला करते हैं तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, उनको आने देंगे, रोकेंगे? और हमारे साहब ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स को पिछले साल के बड़े पैकेजेस दिए गए, जो रिलीफ पैकेज था कोरोना के दौरान भी अरबों रुपए को दिए गए, लेकिन इसमें करप्शन के बड़े इल्जाम लगते रहे हैं। जुल्फिकार नैन अली खान और जो चेयरमैन को इल्जाम लगाते रहे, उसका कुछ तांत्रिक ऑडिट नहीं हुआ, तो उसके बाद से जहाँ तक ऑडिट की बात है तो यूटिलिटी स्टोर्स का जो पिछला बोर्ड था और जो नया बोर्ड भी आरजी बना हुआ है, उन्होंने तो ऑडिट को ओके कर दिया है कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म हायर की जाए और उसको देखा जाए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले हफ्ते ही आप में से कुछ लोग वहाँ मौजूद थे कि पहली मतलब ऐसे हुआ कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे ऑटोमेशन से ये फायदा होता है, कंप्यूटराइजेशन से, कि इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड हो जाते हैं एक इदारे के, क्योंकि आप ये दस्ती कागजात रख के और मैनुअल रजिस्टर्स रख के आप कंट्रोल्स उस तरह नहीं एक्सरसाइज कर सकते। तो पीटीसीएल के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक इदारा है एनआरटीडीसी, उनको इसका टेंडर दिया गया है कनेक्टिविटी का और हार्डवेयर सप्लाई का, और उसके साथ हम यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर ये ऑटोमेशन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बेहतर शफाफियत जो है वो सामने लाई जा सके। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखिए पीडीएम बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी यतीमों का गिरोह है। अब ये आज देखें आप कि कितना बड़ा लतीफ़ा है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कौन सी जमातें कह रही हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं, उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब कह रहे हैं, उसके बाद मेरे भाई अवैस नूरानी कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें।
अब इनसे पूछें आपके एमएनएस कितने हैं असेंबली में, आंसर इज 0। आपके एमपीएस कितने हैं, आंसर इज 0। यानी वो सारे लोग जिनका सिस्टम में कोई स्टेक ही नहीं है, सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं है, वो बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें। JUIF जो इस वक्त फजलुर रहमान साहब सबसे ज्यादा कीन लगे हुए हैं कि हमें इस्तीफे दे दें, हमें इस्तीफे दे दें। पूरे मुल्क में तकरीबन 1150-1200 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। फजलुर रहमान साहब तो टोटल कैंडिडेट ही 40-50 खड़े करते हैं। मुझे बताइए इनका क्या स्टेक है सिस्टम में। सो मुझे उम्मीद है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि इस चूचू के मरबे में चूचू हैं यानी बड़े हैं, और ये जो है ये इस तरह का रैश डिसीजन नहीं करेंगे क्योंकि उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। अगर ये कर भी देंगे तो फिर देखते हैं कितने लोग इनकी बातों के ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि सेनेट के वोट के ऊपर भी तो आपने देखा है कि कितने लोगों ने इनकी बातों पर अमल किया। मेरे सर दो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल है जिसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी आप कर देना। एक तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो ऑयल आता है वो सब स्टैंडर्ड जो आम लोकल कंपनी है उसके अलावा किसी बड़ी कंपनी के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती। ये पिछले साल भी देखा गया, उससे पिछले साल भी देखा गया। दूसरी चीज़ सर आपने ये बड़ा अच्छा एक शेड्यूल है कि इन्होंने डोमेस्टिक के लिए कनेक्शन गैस के हमारी इतला के मुताबिक 18 लाख पेंडिंग हैं जो दरख्वास्त है और 3 लाख की मंजूरी पहले पर यूनिट दी गई आती है। इसमें भी कोटे में इजाफा किया गया है या नहीं किया गया करना। सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स के घी के जो भी घी वहाँ पे आता है, इस पे मैंने भी तहकीक करवाई है और पूछा भी, वो तमाम PSQCA से स्टैंडर्डाइज्ड होता है। जो PSQCA से स्टैंडर्डाइज ना हो वो नहीं आता। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घी की 3 मार्केट्स हैं पाकिस्तान में। एक जो सबसे छोटी मार्केट है वो Tier 1 ब्रांड है, 70 से 80% जो बिकता है वो Tier 2 और Tier 3 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर का बिकता है। और यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडी दे रही है वो Tier 2 ब्रांड पे भी दे रही है, जिसकी कीमत को थोड़ी कम भी होती है और आमतौर पे आम पब्लिक में सबसे ज़्यादा मकबूल भी वही घी होता है। जैसे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है डालडा, वो डालडा Tier 1 भी बनाती है और मनपसंद के नाम से वही कंपनी Tier 2 भी बनाती है, जिसकी कीमत कम होती है और उसको यूटिलिटी स्टोर्स में भी एक ब्रांड है जिसको रखा जाता है। तो ये तमाम जो भी आता है ये PSQCA से इसके क्वालिटी चेक्स होते हैं और जिसके पास अप्रूवल ना हो वो नहीं आता। ये मैं थोड़ा सा इस पे आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये बिल्कुल बात आई थी कि जी ये स्टैंडर्ड्स का नहीं है। हमने उसके बाद तमाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने घी को चेक किया और वो सारा घी जो था वो बिल्कुल सही था। उस कंटेनर्स में कहीं पर इशू था कि यानी जो बर्तन जिसमें डला हुआ था उसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो होगा, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस कनेक्शन जो आपने कहा इस साल 4.5 लाख जो है वो गैस कनेक्शन लगाए गए हैं। अगले साल का हमारा टारगेट 6 लाख है, तो इंशाल्लाह जो 18 लाख की फिगर है जल्दी कवर हो जाए। आपने जिस तरह यूटिलिटी स्टोर का बताया कि हर साल मतलब सब्सिडी मतलब दी जाती है, हर उसमें गवर्नमेंट में जो है, मगर उसमें जो असल जो उसकी वजह है उसके जो असबाब है वो ये है कि जब ये रमजान का महीना खास हो गया है और यूटिलिटी स्टोर में जो चीज़ें जिसकी आपने लिस्ट की तरफ इशारा किया 19 आइटम जो ही आ गए, मगर वो पहले ही 15 दिन में 10 दिन के बाद ये चीज़ें वहाँ से नापैद हो जाती हैं और वो पहले तो फिर क्वालिटी भी उसमें वो हो जाती गिर जाती है और क्वान्टिटी तो वैसे नहीं रहती। एक तो ये इंश्योर करते हैं कि आप उसको किस तरीके से आप वो करेंगे कि भी आप इसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के ऊपर। दूसरा बहुत जो साहब आप क्योंकि बेशक उधार आप कह रहे हैं उधार पे आए, मगर बात ये है कि ये अब रमजान का महीना आ रहा है और वैसे महंगाई तो वैसे अपने रूप पर है, मगर रमजान में खुसूसी तौर पर ये होता है कि मतलब जो चीज़ 100 रुपये की है वो एकदम 200 और 300 में चली जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपका क्या मैकेनिज्म? दोनों के हमारे से भी बताते हैं। जो मिकदार है देखें, जब 30 से 40 रुपए केजी आप किसी चीज़ पे सब्सिडी देंगे मार्केट से तो ज़ाहिर है उस पर एक प्रेशर तो आएगा उस कमोडिटी पे। लेकिन इस मरतबा हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स के अफसरान हैं और मैनेजमेंट है उनको ये कहा है कि इस मरतबा ज़्यादा तादाद में पिछले सालों की बनस्बत चीज़ों की स्टॉकिंग रखें और पहले से उसकी परचेजिंग रखें। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि मिकदार जो और क्वालिटी के ऊपर तो हम पहले दे चुके हैं कि वो सारे जो अप्रूव्ड ब्रांड्स होते हैं वो PSQCA और वो पूरी उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं। कीमतों के हवाले से भी मैंने आपको यही बताया कि हम जो वफाकी हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है डिमांड एंड सप्लाई जो हमारे हाथ में है चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कि हम उसको उसकी सप्लाई को बर वक्त रखें, किसी चीज़ की कमी ना आने दें और एम्पल सप्लाई रखें मुनासिब रेट्स के ऊपर, चाहे वो आटा हो, चीनी हो और घी हो। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह रमज़ान से पहले कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऐसे इक़दाम वफाकी हुकूमत करे जिससे जो मोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं उन पे रेट्स पे बेहतरी आए।
अब ज़्यादातर प्राइस कंट्रोल जो है वो सूबों के पास है और खाने पीने की अशिया का, तो उसके ऊपर हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। हर पीर को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ शेख साहब, वो नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी को चेयर करते हैं, जिसमें तमाम सूबे और इकाइयाँ और उनके चीफ सेक्रेटरीज और रेलिवेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और वफाकी हुकूमत के भी रेलिवेंट मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसी वजह से आज मैं आपके फोरम से भी ये तलकीन करना चाह रहा हूँ तमाम सूबों और इकाइयों को कि वफाकी हुकूमत तो जो कर रही है वो अपनी जगह, इस वक्त कोविड के बाद पूरी दुनिया में एक कमोडिटी स्पाइक आया हुआ है। आप जाके कोई ब्लूमबर्ग का इंडेक्स उठा लें, एनर्जी इंडेक्स उठा लें, तो कीमतें, एक सप्लाई शॉक आया हुआ है, एक ट्रेड डिसरप्शन आई हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ, अर्जेंटीना से लेके ब्राजील से लेके साउथ एशिया में क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, तो एक शॉक आया हुआ है, सप्लाई शॉक। इससे अगर हमने अपनी कौम को इंसुलेट करना है तो हमें बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, और बर वक्त हमें जो है वो फैसले करने होंगे, और वो फैसले जो है वो हम साथ के साथ कर रहे हैं, ताकि कम से कम, अब जैसे आप देखें घी है, घी $560 का होता था, आज वही घी जो पाम ऑयल जिससे बनता है वो $1080 का पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये एक हुकूमत के लिए चैलेंज है कि इंटरनेशनल प्राइस जब इतनी ऊपर जाती है तो इसको आगे हमने कैसे रोकना है। हमारा तो ये बताइएगा कि खाद के हवाले से आपने जिक्र किया कि तारीखी जो है उसकी सेल हुई है, तो ये भी एक हकीकत है कि 5 मरतबा कीमतों में इजाफा हुआ है यूरिया की। गुज़श्ता रोज नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी में आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये ब्रीफिंग हुई है, और डीएपी की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है, तो किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे? और दूसरा ये बताइएगा कि विभाग में और जो सिंध में गैप आ रहा है गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, कि सिंध में 2000 रुपये मुकर्रर किया है, विभाग ने 1650 रुपये मुकर्रर किए, जबकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो खुद अपनी रिकमेंडेशन है वो 1800 रुपये की थी। तो किस तरह से टारगेट पूरे किए जाएंगे ये गंदम के, क्योंकि गंदम की फसल आने वाली है? देखें, जब हम आए थे तो तकरीबन 2000 रुपये के करीब यूरिया की बोरी थी 2018 में, और इस मरतबा जो रबी सीजन गुजरा जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि तारीखी ऑफ टेक हुआ है, तो तकरीबन 1700 से 1750 रुपये की बोरी जो है वो रबी सीजन के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में बिकी है। और उसके बाद जब हल्की सी टाइट हमें महसूस हुई तो 40-50 रुपये बोरी हमें महसूस हुआ कि कीमत इसकी बढ़ रही है। इसीलिए हम ये 2 छोटे प्लांट्स, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम चलाना चाह रहे हैं, ताकि सप्लाई पोजीशन ईज होए और ये प्राइसेस जो है वो मजीद ना बढ़ें और शायद थोड़ा सा रिवर्स भी होए। तो यूरिया में तो हम कामयाब रहे हैं, ना हमें इंपोर्ट करना पड़ा है, और जो पीक सीजन होता है रबी का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें तकरीबन 70% यूरिया इसी में सेल होता है रबी सीजन का, उसमें प्राइसेस जो थी वो स्टेबल रही हैं। डीएपी का मैं आपको बताऊं कि डीएपी पाकिस्तान में 70 से 80% इंपोर्ट होती है, और वो हुकूमत इंपोर्ट नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में डीएपी की कीमत ऊपर चली गई है, और जितनी पाकिस्तान में ऊपर गई है, हमने ये भी इसका एनालिसिस किया अपनी लास्ट फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी में, उतनी ही बाकी दुनिया में ऊपर गई है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में ज्यादा है या कम है, बल्कि पाकिस्तान में थोड़ी देर के बाद ऊपर गई है, बाकी दुनिया में पहले ऊपर चली गई थी। तो ये डीएपी का तो एक इंटरनेशनल फिनोमिना है जिससे हम डील कर रहे हैं, और यूरिया जो है जो उसकी हम सप्लाई को इंश्योर कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि जो यूरिया की बोरी बिक रही है वो बाकी तमाम अक्सर दुनिया के जो ममालिक हैं, जो खास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं, उनसे काफ़ी सस्ती है। देखिए, गंदम के ऊपर हमने इस मरतबा बर वक्त इंपोर्ट करने का फैसला किया है, और वो इंपोर्ट जो है वो हमने उसके ऑलरेडी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसके वो टेंडर्स फ्लोट करने वाले हैं, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी गंदम की, जो हमने फोरकास्ट किया है कि क्योंकि इस मरतबा कैरी ओवर स्टॉक्स कम है हमारे पास पिछले साल की बनिस्बत, तो जो भी शॉर्टेज आएगी उसको बर वक्त हम इंपोर्ट करके। पाकिस्तान के किसान को बेहतर रेट क्यों नहीं दिया जा रहा जब इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस? भाई मेरे, जब हम आए थे तो गंदम की जो फी मन रेट था वो 1280 रुपये के करीब था। इस वक्त 1650 रुपये, 1700 रुपये और 1800 रुपये मन जो है वो किसान को रेट मिल रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको किसान को रेट तो आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि 2 साल में 400 से 500 रुपये मन गंदम का जो है वो रेट बढ़ा। इसी तरह चीनी का देख लें, मुझे याद है कि जब हम 2018 में आए थे, उससे पहले वाला जो साल था 2017, तो किसान एहतजाज करते थे कि 130 रुपये मन भी नहीं मिलती थी उनको कीमत अपने गन्ने की, 130 रुपये मन। इस वक्त वो खुद मुंह से उन्होंने कहा पिछली शुगर एडवाइजरी में कि हमें 250 रुपये मन तक कीमत जो है वो गन्ने की मिली है, और इस मरतबा मिलें आपस में पूल नहीं कर सकी। तो ये बेहतरी तो है, दूसरी तरफ भी है। वो तो जो इंटरनेशनल रेट है उसी पे हो गया, टेंडर हो गया। पाकिस्तान के ऊपर अदम का इजहार किया गया, मुतालबा किया गया है कि मेंबर इलेक्शन कमीशन जो मुस्ताफी हो जाए। बड़ा अहम इदारा है, आज जो है आपके इजलास की साहब
क्या उसमें भी ज़ेर बहस आया है, हुकूमत जो आईनी तरीका कार है इलेक्शन कमीशन में मेंबरान को हटाने का, कि उसको भी अडॉप्ट करना चाह रही है या कुछ इरादा रखती है ऐसा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का मुतालबा हमने किया है, पहली बात तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। आर्टिकल 218(3) कहता है कि इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। इस सेनेट के इलेक्शन में आप खुद उठा करके देखें, तमाम सियासी जमातों का इसके ऊपर इजमा है, कंसेंसस है, इत्तफाक राय है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सका। और वो जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं कर सका? हमने ये कहा इलेक्शन कमीशन को, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि हमें इजाजत दें कि सियासी जमातें देख सके कि वोट किसको डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 226 अमेंड के बगैर तो आप तो ये नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 218(3) के तहत ये कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये तलकीन की कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करें और इस चीज को इंश्योर करें कि इलेक्शन जो है वो साफ, शफाफ और करप्ट प्रैक्टिसेस के बगैर हो। इन द मीन टाइम यहाँ पे वीडियोज आ गई और वो वीडियोज आपने भी देखी, हमने भी देखी, सबने देखी। उसके बाद पाकिस्तान में जो भी थोड़ा बहुत भी वेल इन्फॉर्म्ड है, आप सारे दोस्त तो यहाँ बैठे हैं जिनका काम ही है कि कवर करना, आप खुद मुझे बता दें कि क्या सेनेट के इलेक्शंस जो हैं क्या साफ, शफाफ और करप्ट प्रैक्टिसेस के बगैर हुए हैं? आप जो लोग इस वक्त सियासी जमातों के हेड्स हैं उनसे भी पूछ लें, वो भी आपको बता देंगे कि उनका क्या ख्याल है। उनका तो टीवी के ऊपर है। अब जब आप जिस मकसद के लिए आपको बनाया गया है आप वो मकसद ही पूरा नहीं कर सके, तो जाहिर है कि आपसे हम एक सियासी जमात की हैसियत से हमारे जो लोग हैं उनका मुतालबा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मेहरबानी करें आप इस्तीफा दे दें और पार्लियामान को मौका दें कि वो नया अपना इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाए। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि एक मुतनाज़िर इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे मामलात को लेके चलेगा। इलेक्शन कमीशन की तो क्रेडिबिलिटी ही ये है ना कि सब लोगों का उसके ऊपर एतमाद होना चाहिए। अगर आपके ऊपर एतमाद नहीं है तो आप चले जाएं। अब सेकंड, ये अटॉर्नी जनरल साहब के साथ बात हुई है, मेरी भी बात हुई है और अब हम अटॉर्नी जनरल साहब के साथ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज खुद एहसास करना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। और अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि इसके कानूनी जो है जो भी हमारे पास उसके जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जो भी हल मौजूद हैं, जिनमें से एक सॉल्यूशन ये है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और बाकी भी तमाम जो अवेलेबल हमारे पास मुयस्सर हैं जो कानूनी राय, जाहिर है कि हम वो इस्तेमाल करें। ये बताया कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की पीडीएम इजलास में कि आप पाकिस्तान वापस है और हम मिलकर लड़ेंगे, तो नवाज शरीफ अगर ये दरख्वास्त मान लेकर वो वापसी का रास्ता इख्तियार करते तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी? हम तो एयरपोर्ट पे खड़े होंगे उनको लेने के लिए। नवाज शरीफ साहब हिम्मत करें, आए तो सही, हम तो एयरपोर्ट पे भेजेंगे लोग उनको लेने, इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू।